Hello students and welcome back to the next video of class 4th. In this video I will discuss the remaining topics of chapter number 3. Okay, I hope you watched the previous videos very carefully and understood the topics mentioned in that. So let's start with the first topic of this video, that is gadgets. Okay, gadgets are a small application that carry out various functions. See, gadgets are a special function of your Windows 7 operating system, and it is very useful for displaying such some important informations regarding your computer or anything else. Okay, so these are the small applications that carry some functions, some specific type of functions in it, and this facility is only provided in this Windows 7 operating system. Okay, so some are very useful, such as displaying the weather for your location. Other are just a bit of fun, such as picture puzzle gadget. Some examples of gadgets are weather puzzle, random pictures. There are various types of there are various types of gadgets. Such as some of the gadgets are displaying the weather forecasting of a particular location, whatever location you will select. Okay, some are like just for fun, like picture puzzle. Okay, it's a kind of game. Okay, and some examples of gadgets are weather puzzle, random pictures. Also, some will display the random pictures of your computers. Okay, which is available in your computer, those photos which is available in your computer. Okay, so I'm going to show you how gadgets are to be added in your desktop. Okay, first of all, just let me show you. There is no gadget in my desktop right now. I am not having any kind of gadget on my desktop. Okay, so how to add it, I'm going to just show you. So let me just do it. Okay, to add the gadget on the desktop, we'll have to follow some of the steps. The first one is step 1, right click on the desktop. Means firstly we'll have to right click on the empty area of desktop. Okay, then we'll get a short menu like this only. इस टाइप का कुछ मेन्यू दिखाई देगा आपको, है ना. देन यू विल हैव टू सेलेक्ट गैजेट. इससे पहले हम लोग क्या सेलेक्ट करते थे, पर्सनलाइज सेलेक्ट करते थे. व्हेन विल हैव टू चेंज द बैकग्राउंड, when you'll have to change the screen saver, when you'll have to change the theme of the window. Okay, the theme color of the window. Okay, so in that case I'll have to select personalize. But when you have to add any gadget in your desktop, then in that case you must have to select this gadget option. Okay, after that just double click on a gadget which you want to add on the desktop. See, once you select that gadget option, then you will get so many gadgets. Okay, जो भी gadgets आपके Windows 7 में available हैं, you will get a display of all the list of all the gadgets. Okay, and you for simply adding that particular gadget, you will have to double click on it. Simply आपको double click करना है उस particular option पर, उस particular gadget पे. Okay, so how you will have to do it, just I am going to show you. राइट क्लिक ऑन इट, राइट क्लिक आप करेंगे. वंस यू राइट क्लिक ऑन इट, यू विल गेट अ गैजेट ऑप्शन. जस्ट सेलेक्ट दैट ऑप्शन. वंस यू सेलेक्ट इट, a list of gadgets will be open. See, some of the gadgets are shown here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gadgets are there. The first one is of calendar, the second one is simply a clock, the third one is CPU meter. CPU meter will tell you how much RAM and how much memory is used right now. Means कितनी प्रोसेसिंग कितनी यूज़ हो रही है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कितनी रैम यूज़ हो रही है, इसकी डिटेल्स आपका CPU मीटर देता है. ओके, this one is for just for currency. This one is feed headlines. Feed headlines means whatever, if you are connected to internet, then whatever the headlines of any particular means any particular headline or any particular breaking news kind of thing, that will be updated here. Okay,
The next one is picture puzzle. This is just for fun. We'll have to select, we'll have to play, we can play that particular game, and we'll have to make a picture just to slide the puzzles over here. Okay, the next one is slide show. Slide show में क्या है कि आपकी जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे उसकी स्लाइड शो चलती रहेगी. ओके, नेक्स्ट वन इज़ वेदर. वेदर में आप जो भी लोकेशन सेलेक्ट करोगे उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में सारी जो वेदर की इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपकी इसमें डिस्प्ले हो जाएगी. एंड द लास्ट वन इज़ विंडो मीडिया. इट इज़ जस्ट फॉर लिसनिंग द म्यूज़िक और जस्ट अ शॉर्टकट फॉर लिसनिंग द म्यूज़िक. ओके, विंडो मीडिया प्लेयर चलाने के लिए. सो विल सेलेक्ट which one we'll have to select. Let me see, the calendar and clock. We'll select calendar and clock here because in your book it is also given. So just double click on it. जैसे ही हमने डबल क्लिक किया ये आ गया होगा. एंड क्लॉक के लिए भी हमने डबल क्लिक कर दिया. अब ये भी शायद आ गया होगा, नहीं आया है, ये आ गया. ओके, सो हमने ये दोनों सेलेक्ट किया. सी Monday 3 May is the time and is the date and the time it's approx 9:47 approx. Okay, so this is your gadget, and some more gadgets we can select, like if you want to select the CPU meter, just double click on it. You will see CPU meter is also there. If you want to use picture puzzle, see picture puzzle, it's a kind of game you can play. Okay, that I am going to show you. Let me just show you how to play this game little bit. If you are able to see, we can move it also, and simply you will have to make you simply have to slide that boxes which is given here. Okay, and you will have to make a picture. Which picture you will have to make? See, this is the original picture, and this you will have to make but simply shuffling on it. Okay, ये देखिए शफलिंग करने के लिए आपको दे दिया गया, शफल करके दे दिया गया. ओनली यू विल हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर पिक्चर. ओके, सो दिस इज़ योर गैजेट ऑप्शन. दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन ऑफ Windows 7 विच इज़ प्रोवाइडेड ओनली इन Windows 7. सिर्फ Windows 7 में ये अवेलेबल होता है, Windows 10 में भी इवन अवेलेबल नहीं है. ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड फीचर ऑफ Windows 7. Okay, there is one fact bit. If you want to remove the gadget from the desktop, place the mouse pointer on the gadget and click on close button. अगर किसी भी गैजेट को आपको हटाना है अपने डेस्कटॉप से, only you will have to move the mouse pointer on the gadget and click on the close button. ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं. सिंपली सपोज करिए अगर ये गैजेट हमें हटाना है तो ओनली विल हैव टू मूव द माउस पॉइंटर ओवर हियर एंड जस्ट सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन. जैसे हम क्लोज ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगा. वन मोर आई कैन शो यू. देखिए ये CPU मीटर है आपका, है ना. सिंपली यू विल हैव टू सेलेक्ट दिस एंड जस्ट क्लिक ऑन द क्लोज बटन. जैसे आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिसअपियर्ड. ओके, सो दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग द गैजेट्स फ्रॉम द desktop. Okay, this is simple method. Now let's move to the taskbar. अब हम taskbar पे जाते हैं. A taskbar is located at the bottom of the screen which allows you to locate and launch programs through the start button. See, taskbar is this one. ये आपका taskbar है, ठीक है, जो सबसे नीचे एक bottom side में सबसे नीचे आपको जो वो मिलता है एक rectangular bar. That is your taskbar. Okay, a bar is located at the bottom of the screen. ये मैंने पहले ही बताया कि bottom of the screen पे होता है सबसे नीचे. In fact you can simply move it. मतलब आप मूव करा सकते हो लेफ़्ट राइट और अप साइड भी आप कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ओनली. ठीक है, विच अलाउज यू टू लोकेट एंड लॉन्च प्रोग्राम्स थ्रू द स्टार्ट बटन. इसके थ्रू आप स्टार्ट बटन पर जा करके, देयर इज वन स्टार्ट बटन इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर. सी, ये आपका टास्क बार है. टास्क बार में क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज स्टार्ट बटन जो कि यहाँ पर अवेलेबल है बॉटम लेफ्ट. एट द बॉटम लेफ्ट इट इज़ अवेलेबल स्टार्ट बटन. सम क्विक लॉन्चेज आइकन, क्विक लॉन्च आइकन्स आर देयर. यहाँ पर क्विक लॉन्च आइकन्स इसलिए दिए होते हैं, कुछ पहले से दिए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट विंडो मीडिया प्लेयर का, फाइल एक्सप्लोरर का और गूगल क्रोम. इफ़ यू आर हैविंग गूगल क्रोम
in your computer, then its quick launch icon is also available here. ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिए रहते हैं. यू कैन चेंज इट ऑल्सो. आप अपने से भी क्विक लॉन्च बटन्स को, जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 क्विक लॉन्च बटन ऐड कर लिए अपने से. ओके, तो वी कैन ऐड एंड रिमूव ऑल्सो, जिसको कि हम पिन बोलते हैं. पिन करना, पिन और अनपिन करना. ओके, सम राइट साइड पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं लाइक शो डेस्कटॉप बटन. दिस इज़ योर शो डेस्कटॉप बटन. ओके, इससे क्या होता है, वेंस यू क्लिक ऑन दिस बटन यू विल डायरेक्टली मूव ऑल द एप्लीकेशन, ऑल द एक्टिव एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज, मीन्स मिनिमाइज, एंड यू विल गेट अ डेस्कटॉप ओपन. मतलब डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड ऑल द एक्टिव विंडो, जो भी विंडो आपकी ओपन है, चाहे वो कोई भी विंडो हो, वो सारी की सारी एक बार में मिनिमाइज हो जाएंगी. क्लोज नहीं होगी, मिनिमाइज होगी, एंड यू विल गेट अ सिंपली डेस्कटॉप. मतलब सिंपल आप डेस्कटॉप आपके सामने ओपन हो जाएगा. ओके, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, इट इज़ जस्ट शोइंग यू द प्रीव्यू. ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, ये भी आप बहुत बड़ा फीचर है विंडो 7 का, कि आप जब भी किसी आइकन पर ले करके जाते हैं अपने माउस पॉइंटर को, तो वो ऑटोमेटिकली प्रीव्यू डिस्प्ले करने लगता है. ओके, तो ये अभी देखिए हम शो डेस्कटॉप पे जैसे ही गए, हमने कुछ क्लिक नहीं किया, इट इज़ जस्ट शोइंग द प्रीव्यू. कि आप जैसे ही इस बटन को क्लिक करोगे आपको इस टाइप का ही ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, मीन्स डेस्कटॉप दिखाई देने लगेगा. इसीलिए यह आपको प्रीव्यू दिखाने लगा. यहाँ पर भी देखिए, वंस यू देखिए आप सिर्फ माउस लेके जाएंगे एंड इट विल शो यू द प्रीव्यू. प्रीव्यू किस चीज़ का, इसी चीज़ का प्रीव्यू दिखा रहा है ना. तो इट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ विंडोज 7 इन विच वी कैन सी लाइव प्रीव्यू. लाइव प्रीव्यू मतलब जो भी विंडो आपकी ओपन है या जो भी चीज़ ओपन है, आप सिंपली माउस को लेके जाएंगे, और जैसे आप वहाँ पर लेके जाएंगे बिना कुछ टच किए, बस आप माउस को ले करके जाएंगे उस पर्टिकुलर प्लेस पर, एंड इट विल शो यू द लाइव प्रीव्यू. ओके, देखिए यहाँ पर भी लाइव प्रीव्यू दिखाएगा, ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर का. ओके, सो एंड द लास्ट वन इज नोटिफिकेशन एरिया और सिस्टम ट्रे. इसे हम नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं या फिर सिस्टम ट्रे भी कहते हैं. यहाँ पर आपके जितने भी नोटिफिकेशंस आ सकते हैं वो सारे के सारे मोस्टली कॉमनली यूज नोटिफिकेशन आपके दिखाई देते रहते हैं. और यहाँ पर कुछ सिस्टम की चीज़ें भी हैं लाइक वॉल्यूम बढ़ाना घटाना, मीन्स इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम. वाईफाई आइकन, ओके, वाईफाई आइकन भी है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर गिवन हियर. ओके, सो दीज आर द सिस्टम ट्रे और नोटिफिकेशन एरिया. दिस ऑल इज प्रेजेंट एट द टास्क बार ओनली. ये सारी चीज़ें आपकी टास्क बार में ही प्रेजेंट होती हैं. ओके, फैक्ट बिट, इन एप्पल मैकिंटोश द टास्क बार कैन बी कोरिलेटेड एज डॉक. मतलब यहाँ पर आपका टास्क बार जो है वो कोरिलेटेड होता है, मीन्स आपका टास्क बार एक फिक्स टाइप का नहीं होगा वहाँ पर. ठीक है, आप चाहो तो उसको मूवेबल भी बना सकते हो, उस टाइप का कुछ होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द स्टार्ट बटन. अब हम स्टार्ट बटन पे आते हैं, मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार. अब टास्क बार के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने बताए थे. सबसे पहला था स्टार्ट बटन, फिर क्विक लॉन्च एरिया, फिर नोटिफिकेशन एरिया, है ना, और उसके बाद एक डेस्कटॉप बटन वाला तो आपको पता ही है इसके बारे में. ये देखिए शो डेस्कटॉप बटन इज ऑल्सो देयर. ठीक है, अब इसके बाद आपको चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार, जो मैंने स्टार्टिंग में अभी भी आपको बताया था, दैट आई विल गोइंग टू शो यू. तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे आते हैं. अ स्टार्ट बटन अलाउज यू टू एक्सेस योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ईजिली. मतलब स्टार्ट बटन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बटन फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस ऑल द प्रोग्राम्स विच इज़ अवेलेबल इन योर कंप्यूटर. हम स्टार्ट बटन के थ्रू जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में हैं उन सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट बटन. मीन्स यू कैन से स्टार्ट बटन इज़ द मोस्ट कॉमनली and that particular portion of taskbar in which we can from which we can open all the computer programs which is available in your computer. Okay, one more thing we can do, whatever the settings of Windows 7 or whatever the settings of your computer, that is also available in your स्टार्ट बटन. जितनी भी सेटिंग्स आप, चाहे वो साउंड की सेटिंग हो, चाहे वो प्रोग्राम्स की सेटिंग हो, चाहे वो यूज़र्स की सेटिंग हो, कोई भी सेटिंग, whatever settings you want to configure in your computer, that must be available in your start button. वो सारी की सारी कहाँ अवेलेबल होती हैं, आपके स्टार्ट बटन पे होती हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द
fact bit. Some fact bit about the start button is also, start button can be moved or to the top left or top right hand of the screen by moving the task bar. अगर आप अपने task bar को move कराते हो, मतलब अगर आप अपने task bar को अप साइड लेके जाओगे यानी ऊपर कर दोगे तो ऑब्वियसली ये जो स्टार्ट बटन ये अपने आप कहाँ पहुँच जाएगा, टॉप राइट पे पहुँच जाएगा, टॉप लेफ्ट पे पहुँच जाएगा, सॉरी, ओके। और अगर आप राइट साइड पे लेके जाओगे तो टॉप राइट साइड पे पहुँच जाएगा, है ना। अगर आप अपने टास्क बार को लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो टॉप लेफ्ट तो वो पहले से ही रहेगा। मीन्स वंस यू चेंज द पोजिशन ऑफ योर टास्क बार यू विल सी all the contents of your taskbar will automatically change the position as per your taskbar। मतलब taskbar के अकॉर्डिंग ही आपके जितने भी ये taskbar के कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे अपनी पोजीशन खुद ही से चेंज कर लेंगे, ओके। सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ योर taskbar। ये सारी की चीज़ें taskbar की पोजीशन पे ही डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट इज़ योर क्विक लॉन्चर एरिया। क्विक लॉन्चर एरिया कौन सा होता है, ये एरिया जहाँ पर आपके कुछ शॉर्टकट्स दिए होते हैं, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दिए होते हैं, एंड सम यू कैन ऐड इट, ओके, सम यू कैन पिन एंड सम इज़ ऑलरेडी बीन गिवन। लाइक गूगल क्रोम पहले से दिया होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया होता है, फाइल एक्सप्लोरर दिया होता है, दिस इज़ योर फाइल एक्सप्लोरर ऑल्सो, है ना। सम दिस वन इज़ ऑल्सो गिवन, दैट इज़ योर विंडो मीडिया प्लेयर। बाकी ये जो 2-3 हैं ये मैंने खुद से ऐड किए हैं, ओके। सो दिस इज़ योर quick launcher area, okay। Now this holds quick launch icons that you can open by simply clicking on this। See, अब आप पूछोगे कि सर ये किस चीज़ का आइकन लेकर रखते हैं, तो आइकन्स आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स हैं उन्हीं के आइकन्स, उन्हीं के शॉर्टकट आइकन्स जो होते हैं उन्हें ये अपने साथ होल्ड करते हैं। ओनली यू विल हैव टू सिंपली सिंगल क्लिक ऑन इट। आपको ओपन करने के लिए सिंगल क्लिक करना होता है एंड दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वॉट एवर द एप्लीकेशन इट इज़, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाती है। ओनली दिस मच यू हैव टू डू, ठीक है। क्विक लॉन्चर एरिया में सिर्फ इतना काम आपको करना होता है। ओनली यू विल हैव टू क्लिक ऑन इट एंड दैट पर्टिकुलर पोर्शन, दैट पर्टिकुलर थिंग विल डायरेक्टली बीन ओपन, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर गूगल क्रोम पे क्लिक करोगे तो गूगल क्रोम अपने आप सिंपली सिंगल क्लिक करने से ये अपने आप ओपन हो जाएगा, ओके। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करते हो, इसे एक्सप्लोरर बोलते हैं या फिर एज भी आप बोल सकते हो, तो अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करते हो तो इट विल डायरेक्टली बीन ओपन, ओके। सिंगल क्लिक करना होता है आपको। एंड विंडो मीडिया प्लेयर को ओपन करना है तो सिंपली क्लिक ऑन इट, ओके। एंड इसी तरह से आप अपने और भी कंप्यूटर के जो आइकन्स हैं उनको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पिन कर सकते हो, जिससे कि आपको सिंपली क्लिक करना होता है, ठीक है। जो भी एप्लीकेशंस आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो दैट यू कैन पिन ऑन द टास्क बार, ताकि आपको कहीं और स्टार्ट बटन में जाके ढूंढ करके ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन द दैट पर्टिकुलर आइकन फ्रॉम द टास्क बार। उस पर्टिकुलर आइकन को आप क्लिक करेंगे और वो पर्टिकुलर आइकन आपका ओपन हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन विल बी ओपन डायरेक्टली, ओके। So this is your quick launch area. Now let's move to the next one, that is notification area। अब notification area पे आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया this is your notification area। Here you can get the notification options। जितने भी notifications आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो भी आपके कंप्यूटर में पर्टिकुलरली इस टाइम पे यूज़ हो रहे हों, उन सारे notifications की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ओके। The notification area is a portion of Microsoft Windows that displays program running in the background। जो भी प्रोग्राम्स आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो सारे के सारे का डिस्प्ले, सारे के सारे प्रोग्राम्स का आपका नोटिफिकेशन इस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल होता है, ओके। इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट पोर्शन ऑफ द टास्क बार। सी, इट इज़ प्रेजेंट ओवर द राइट पोजीशन ऑफ द टास्क बार। इन टास्क बार का जो राइट पोजीशन है वहाँ पर ये अवेलेबल होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम ट्रे। इसे आप सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। सी, यू कैन, आई कैन शो यू सम ऑफ द एप्लीकेशन। सी, देखिए हमारा टच पैड काम कर रहा है, ओके। जिस टच पैड से मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने लैपटॉप को, ओपन वन नोट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट थिंग, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, तो ये भी आपका वर्क कर रहा है। दिस इज़ अ एंटीवायरस विच इज़ ऑल्सो राइट नाउ इनेबल्ड, तो वो भी चल रहा है आपका। यहाँ पर वाईफाई चल रहा है,
यहाँ पर कुछ अपडेट्स, सम अपडेट्स आर अवेलेबल, तो दीज आर द नोटिफिकेशंस ना, तो दैट्स वाई इट इज़ शोन इन योर सेक्शन एरिया। लो डिस्क स्पेस मतलब लैपटॉप में हमारे अभी डिस्क बहुत कम बची है, तो इसलिए ये भी नोटिफिकेशन एरिया दे रहा है। एंड सम स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर मेकिंग दिस वीडियो। हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए हम जो नोटिफिकेशन इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डर का, वो भी आपको डिस्प्ले कर रहा है। मीन्स ऑल द सिस्टम इंफॉर्मेशन राइट नाउ विच इज़ अवेलेबल, ओके, जो भी आपके सिस्टम में अभी चल रहा है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो रही है। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नोटिफिकेशन एरिया, इसीलिए इसको नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ट्रे, इसे हम सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। मतलब आपके, अब देखिए जो आपके बुक में दिया है इन फिगर 3.10 में, फिगर 3.10 में नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन दिए हैं। ये सारे नोटिफिकेशंस आपके डिपेंड करते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज़ वर्किंग, एंड वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको उसी अकॉर्डिंग दिखाई देंगे। ओके, अगर हो सकता हो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में कुछ और दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होगे, मैं कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ टोटली this notification area is totally dependent on that particular applications which you are using at that particular time. Okay, it is also known as system tray, इसे हम system tray भी कहते हैं। The system tray holds systems icon such as icon of network, volume and system clock. इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं that you can see here right now। देखिए चार्जिंग वाला अवेलेबिलिटी तो ज़रूरी नहीं है इस वक्त, क्योंकि चार्जिंग सब में नहीं होती, मीन्स लैपटॉप्स में होती है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, नॉर्मल पीसीज, तो उसमें चार्जिंग की कोई फैसिलिटी नहीं होती, बट वॉल्यूम की फैसिलिटी दिखाई देगी आपको, है ना। वॉल्यूम यू कैन सी हाउ मेनी ऑप्शंस आर गिवन, सिस्टम आइकन सच एज आइकन ऑफ नेटवर्क, वॉल्यूम एंड सिस्टम क्लॉक। देखिए नेटवर्क का तो आपको यहाँ दिख ही जाता है, वॉल्यूम का भी आपको दिख रहा है। ये नोटिफिकेशन वाला जो मेरे पास है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, सिस्टम क्लॉक ऑल्सो, सिस्टम क्लॉक डेट एंड टाइम, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल हियर। ठीक है, यहाँ से यू कैन सी द डेट एंड टाइम एज वेल एज यू कैन सी द चेंज ऑल्सो डेट एंड टाइम, एंड यू कैन चेंज द टाइम जोन ऑल्सो, कि कौन से एरिया में कौन सा टाइम जोन यूज़ हो रहा है। ठीक है, दैट यू कैन ऑल्सो चेंज विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप सिस्टम डेट एंड टाइम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ नोटिफिकेशन एरिया है और ये वॉल्यूम वाला है, और ये सारे के सारे बाकी जितनी चीज़ें बची हैं वो सारे के सारे आपके हिडन आइकन्स में यहाँ पर शो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इस वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पाएंगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फैक्ट बिट। Windows 7 introduced a new look to a system tray hiding all the icons until the users click on that small up arrow। ये देखिए, ये जो स्मॉल अप एरो है, अगर इस पर आप क्लिक नहीं करोगे तो आप बाकी के सिस्टम के आइकन्स नहीं डिस्प्ले करा पाओगे। यही चीज़ मैं आपको बताया था, दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय विंडोज 7 इन विच ऑल द सम ऑफ द सिस्टम नोटिफिकेशन विल बी डिस्प्लेड, बट बाकी जितनी बची चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस स्मॉल एरो पे हैं। इस स्मॉल एरो पे आप जब क्लिक करोगे यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस नाउ, क्योंकि सपोज करिए यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए सिर्फ 3 या 4 डिस्प्ले करा सकते हैं आप, है ना, बिकॉज इट इज़ हैविंग सो वेरी लेस स्पेस हियर। तो आप 3-4, और आपके कंप्यूटर में इस टाइम पे नोटिफिकेशंस अप्रॉक्स 10 के आसपास है ना, तो वो सारी के बाकी जो 7 बचेंगी, 3 तो आप यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, बाकी जो 7 होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए 7 है मेरे पास, टोटल मिला के कितनी नोटिफिकेशन है, 10 नोटिफिकेशन, 7 आर अवेलेबल हेयर एंड 3 आर अवेलेबल हेयर। ओके, सो इस टाइप से अगर और भी एप्लीकेशन, देखिए इनके पास और भी एप्लीकेशन यहाँ पर, तो इस वजह से इनकी नोटिफिकेशन ज़्यादा है ना। 8, 9, 10, 11 नोटिफिकेशन यहाँ है, 12, 13, 14 टोटल 14 नोटिफिकेशन है इनके पास, इसलिए इनका ज़्यादा डिस्प्ले कर रहा है। ओके, बट 3 आपको दिखाई दे जाएगी, बाकी बचे हुए आपके ऊपर उस एरो पे दिखाई देंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज शो डेस्कटॉप बटन। शो डेस्कटॉप बटन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस टास्क बार। दिस इज द लास्ट पोर्शन दिस इज द लास्ट बटन इन विद द हेल्प ऑफ विच इफ सी, अगर आपने बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सो मेनी एप्लीकेशंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड यू वांट दैट
ऑल द थिंग्स मीन्स ऑल द थिंग्स शुड बी मिनिमाइज, जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे सडनली मिनिमाइज हो जाएं एंड डेस्कटॉप आपका ओपन हो जाए। या तो एक तरीका ये है कि आपने सपोज 7 एप्लीकेशंस मान लीजिए आप चला रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अगर आपको सारे एप्लीकेशंस को मिनिमाइज़ करना हो तो 1 बाई 1 एक तरीका तो ये है कि आप 1 बाई 1 कर सकते हो। ओके, यू सिंपली हैव टू गो टू मिनिमाइज बटन और हर बार हर मिनिमाइज बटन पे जा जाके आपको क्लोज करना मिनिमाइज करना पड़ेगा। बट विंडोज 7 प्रोवाइड यू वन मोर फैसिलिटी, एक और फैसिलिटी देता है, एक छोटा सा डेस्कटॉप का बटन देता है, जिससे क्या होता है आपको सिंपली इसे क्लिक करना होता है। वंस यू क्लिक ऑन इट यू विल सी दैट कि ऑल द नोटिफिकेशंस, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस आपके ओपन हैं, वो एक बार में मिनिमाइज हो जाएगी। तो आई थिंक दिस वन इज़ क्वाइट ईजी एंड क्वाइट यूजफुल बटन, है ना। ये देखिए शो डेस्कटॉप का बटन यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पर भी आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, दिस बटन इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे के राइट साइड में होता है। इट अलाउज यू टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एट वंस फॉर ईजी एक्सेस टू द डेस्कटॉप। यही बात मैंने अभी भी बताई कि एक बार में सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस आपके वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे एक बार में बंद हो जाएंगे। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपको 1 बाई 1 जो एप्लीकेशंस क्लोज करने थे वो सारे के सारे एप्लीकेशन क्लोज करने की 1 बाई 1 ज़रूरत नहीं पड़ेंगे एंड इट विल अलाउ यू टू क्लोज इट एट वंस। एक बार में ये क्लोज करवा देगा, एक बार में सारे के सारे को मिनिमाइज़ कर देगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, इट सेव्स यू योर लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम आपका ये बचा सकता है। ओके, इट ऑल्सो यूज्ड टू रीओपन ऑल द प्रीवियसली मिनिमाइज विंडोज, इट ऑल्सो यूज टू रीओपन। ये देखिए, अगर आपने एक बार बटन को प्रेस किया तो आपका डेस्कटॉप सामने आ जाएगा, और अगर दोबारा आपने फिर से प्रेस किया तो जितने एप्लीकेशंस आपके ओपन थे वो सारे के सारे फिर से ओपन हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ योर विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 का सबसे अच्छे फीचर्स में से एक फीचर ये है, बिकॉज आपका बहुत सारा टाइम ये बचा सकता है। आपको 1 बाई 1 अगर एप्लीकेशंस को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, तो उस टाइम को बचाने के लिए ये बटन आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, और इजीली ये सारी की सारी चीज़ों को देखिए मिनिमाइज़ भी कर दिया मैंने और फिर मैंने मैक्सिमाइज़ भी कर दिया वापस से। ओनली यू विल हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर बटन। ओके, so I think this is very nice feature. So it is also used to reopen all the previously minimized windows। जितने भी विंडोज़ के आपके एप्लीकेशंस ओपन थे वो सारे के सारे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे वापस से रीओपन भी कर सकते हैं, यानी दोबारा से आप उसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर। So I think this is all about this video. In the next video I will discuss the remaining topics of this chapter. Thank you so much for watching this video.